یہ ایک صدیوں پرانی روایت کا قصہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جاپان کے ایک پہاڑی علاقے میں ایک انتہائی سخت اور بے رحم رسم چلی آتی تھی۔ جب بھی کوئی شخص 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا، گاؤں والے اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتے، جنگلوں، وادیوں اور کھڑی چٹانوں کو پار کرتے ہوئے ایک گہری اندھیری کھائی میں پھینک آتے تھے۔ اس رسم کی وجہ یہ بتائی جاتی تھی کہ بوڑھے اب کھیتوں میں کام نہیں کر سکتے، ان کے جسم میں طاقت نہیں رہتی اور وہ دوسروں پر صرف بوجھ بن جاتے ہیں۔ اس لیے انہیں ختم کر دینا ہی بہتر سمجھا جاتا تھا۔ یہ ظالمانہ روایت نسل در نسل چلی آ رہی تھی۔ گاؤں والے دل سے کتنے ہی دکھی ہوتے، مگر رسم توڑنے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ باہر سے گاؤں بہت پرامن اور خوبصورت لگتا تھا۔ دن میں سورج کی روشنی کھیتوں پر چھلکتی، عورتیں صحن میں بیٹھ کر چاول پیستے، بچے گلیوں میں کھیلتے اور شام ہوتے ہی گھروں کے دروازوں پر چھوٹے چھوٹے چراغ جل اٹھتے۔ مگر اس خوبصورتی کے پیچھے ایک خوفناک سایہ چھپا تھا۔ وہ خوف کہ اگر گھر میں کوئی 60 سال کا ہو گیا تو اس کی زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اسی گاؤں میں ایک سادہ مزاج، محنتی اور صابر کسان رہتا تھا۔ اس نے اپنی پوری جوانی کھیتوں کی مٹی میں پسینہ بہا کر گزاری تھی۔ لوگ اس کی عزت کرتے تھے کیونکہ وہ نیک دل اور دوسروں کا بھلا چاہنے والا تھا۔ مگر وقت کی گردش نے اسے بھی اس مقام پر پہنچا دیا جہاں ہر انسان کو ایک دن پہنچنا ہوتا ہے۔ اس کی عمر 60 سال ہو گئی۔ حاکم کو خبر ہوئی تو فوراً حکم جاری ہوا۔ یہ کسان اب 60 سال کا ہو چکا ہے، اسے رسم کے مطابق پہاڑوں کی گھاٹی میں پھینک دیا جائے۔ یہ خبر گاؤں میں پھیلتے ہی سب خاموش ہو گئے۔ کوئی افسوس کرتا، کوئی آنکھوں میں آنسو بھر لاتا، مگر کسی میں اتنی جرت نہ تھی کہ رسم کے خلاف بول سکے۔ کسان کا بیٹا یہ سن کر تڑپ اٹھا۔ اس کا دل پھٹنے لگا۔ وہ جوان تھا، مگر اس کے دل میں باپ سے محبت اور وفاداری کی ایسی آگ جل رہی تھی جو بجھنے والی نہ تھی۔ اسے معلوم تھا کہ حاکم کے حکم کی نافرمانی آسان نہیں، جو بھی حکم ماننے سے انکار کرتا اس کے پورے خاندان کو سزا ملتی۔ مگر دل یہ بھی برداشت نہ کر پا رہا تھا کہ اپنے باپ کو موت کے حوالے کر دے۔ آخر کار بیٹے نے فیصلہ کر لیا۔ وہ باپ کو کندھوں پر اٹھا کر پہاڑوں کی طرف چل پڑا۔ راستہ لمبا اور دشوار تھا۔ گھنے درختوں کے جھنڈ، پتھریلی زمین، ٹھنڈی ہوائیں اور بلند پہاڑوں پر لپٹے ہوئے بادل۔ راستہ اور بھی سنسان اور خوفناک لگ رہا تھا۔ بیٹے کا ہر قدم اس کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ آنکھیں نم، دل زخمی، مگر وہ مجبور تھا۔ راستہ بالکل سنسان تھا۔ کہیں دور الفالو کی آواز گونجتی، کبھی جھاڑیوں میں چھپکلی دوڑتی، کبھی پتھروں سے ٹکرا کر ہوا کی ساسکی سنائی دیتی۔ بیٹا سوچ رہا تھا، یہ کیسا ظالمانہ دستور ہے؟ کیا بڑھاپا کوئی جرم ہے؟ وہ ہاتھ جو بچپن میں مجھے اٹھاتے تھے، آج سزا کے مستحق ہیں۔ بوڑھے باپ نے بیٹے کے دل کی حالت بھانپ لی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کام بیٹے کے لیے آسان نہیں۔ نرمی سے بولا، بیٹا غم نہ کر۔ یہ دنیا کا دستور ہے، دستور کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ تو نے اپنی محبت اور خدمت سے میرا بڑھاپا سنوار دیا۔ اب میرا وقت آ گیا ہے، دل چھوٹا نہ کر۔ بیٹے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولا، ابوا، میں آپ کو اس اندھیری گھاٹی میں کیسے چھوڑ آؤں؟ آپ نے مجھے زندگی دی، پالا، تعلیم دی، بھوک برداشت کی، مگر مجھے کبھی بھوکا نہ سونے دیا۔ اور آج میں آپ کو تنہا چھوڑ دوں؟ یہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ بوڑھے کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ میرے لال، دنیا کی سب سے بڑی حقیقت یہی ہے کہ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ میرا وقت پورا ہو چکا، مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، زندگی میں مشکلات آئیں گی، لوگ آزمائیں گے۔ ایسے وقت میں صبر اور عقل کو اپنا ہتھیار بنا لینا۔ بیٹا باپ کو مضبوطی سے پکڑے چلتا رہا، مگر ہر قدم کے ساتھ دل کی چیخیں بڑھتی جاتی تھیں۔ آخر کار وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں گاؤں والے اپنے بوڑھوں کو چھوڑتے تھے۔ ایک گہری، اندھیری گھاٹی، اتنی گہری کہ نیچے جھانکنے پر بھی کچھ نظر نہ آتا۔ وہاں پہنچ کر بیٹے کے قدم رک گئے۔ دماغ کہہ رہا تھا، رسم پوری کرو، ورنہ حاکم کا غضب تمہیں اور تمہارے خاندان کو تباہ کر دے گا۔
मगर दिल चीख रहा था, नहीं, ये जुल्म है, ये गुनाह है। लड़खड़ाते लबों से बोला, अबुआ, मैं आपको यहां नहीं छोड़ सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको वापस ले जाऊंगा। सजा हो तो मैं भगत लूंगा, मगर आपको तन्हा मरने नहीं दूंगा। बूढ़े ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया कि इसका बेटा सच्चाई और मोहब्बत का रास्ता इख्तियार कर चुका है। बेटा बाप को कंधों से उतार कर एक पत्थर पर बिठाता है। दोनों कुछ देर खामोश बैठे रहते हैं। हुआ में सन्नाटा है, सिर्फ झींगर की आवाजें। बेटा आंसू पोंछते हुए बोला, अबुआ, मैं ये जुल्म नहीं कर सकता। अगर आपको यहां छोड़ आया तो मेरा दिल टूट जाएगा। बूढ़ा मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखता है। चांद की मध्यम रोशनी चट्टानों पर पड़ रही है। नर्म लहजे में बोला, बेटा, अगर तू मुझे वापस ले गया तो गांव वालों को पता चल जाएगा, फिर हाकिम सख्त सजा देगा। सोच ले, ये फैसला आसान नहीं। बेटा बोला, अबुआ, सजा का खौफ मुझे नहीं डराता। आपको खोना मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। आपके बगैर मेरा घर वीरान हो जाएगा। बूढ़ा अपनी कमजोर हथेली बेटे के हाथ पर रखते हुए बोला, मेरे बच्चे, कभी कभी जिंदगी में मोहब्बत इंसान को इतनी ताकत देती है कि सबसे बड़ा खौफ भी छोटा लगने लगता। मगर एहतियात जरूरी है। अगर मेरा जिंदा होना राज बन जाए तो शायद हम बच जाएं। बेटे के दिल को हौसला मिला। वो बोला, अबुआ, मैं आपको घर ले जाऊंगा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं आपको छुपा लूंगा। आप मेरे साथ रहेंगे। फिर बेटा बूढ़े को दोबारा कंधों पर उठाता है और वापसी का सफर शुरू होता है। अंधेरी रात में बेटे के कदम भारी मगर दिल में ताकत थी। रास्ते में उसने देखा कि बाप मुसलसल टहनियां तोड़ तोड़ कर जमीन पर फेंक रहा है। हैरान होकर पूछा। बूढ़ा धीरे से हंसा और मोहब्बत भरे लहजे में बोला, बेटा, ये रास्ता बहुत मुश्किल और अंधेरा है। मैं टहनियां इसलिए फेंक रहा हूं कि जब तो मुझे छोड़कर वापस जाए तो रास्ता ना भूल जाए। ये सुनते ही बेटे की आंखें भर आईं। सोचा, वाह, जिस बाप को मैं मौत देने लाया हूं वो मेरी हिफाजत की फिक्र में है। दिल और भी नर्म पड़ गया। उसने दिल में अहद किया कि अब बाप को कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे जान ही क्यों ना दे। आहिस्ता आहिस्ता वो बाप को वापस गांव ले आया। रात के अंधेरे में छुपते छुपाते घर पहुंचा और बाप को छत पर छुपा दिया। दिल को सुकून मिला कि अब बाप उसके साथ है, मगर खौफ भी था कि अगर हाकिम को पता चल गया तो क्या होगा। छत के एक कोने में बूढ़े को बिठाया जहां पुराने बर्तन और सड़ी हुई लकड़ियां पड़ी थीं। छोटी सी खिड़की से हल्की सी रोशनी आती थी। बेटा बोला, अबुआ, यहां कोई नहीं आता। आप आराम से रहेंगे। मैं रोज खाना पीना लाता रहूंगा, बस खामोशी से बैठे रहना। बूढ़े ने बेटे को दुआएं दे, मेरे बेटे, तूने आज बहुत बड़ा फैसला किया है। अल्लाह तुझे इसका अजर देगा। याद रख, मोहब्बत कभी ज़ाय नहीं जाती। दिन गुजरते गए। बेटा दिन भर खेतों में मेहनत करता, शाम को छपकर बाप के पास जाता। कभी दोनों देर तक बातें करते। बाप जवानी के किस्से सुनाता, जमाने के हालात बताता। बेटा हैरान होता कि इसके बाप के पास कितना इल्म और तजुर्बा है। बूढ़ा अक्सर कहता, बेटा, जिंदगी सिर्फ ताकत से नहीं, अक्ल से भी जीती जाती है। जो शख्स अक्ल छोड़ देता है वो अपनी ताकत भी खो देता है। बेटा खामोशी से सुनता और ये बातें दिल में महफूज कर लेता। एक दिन गांव में हलचल मच गई। ढोल बजने लगे, लोग जमा होने लगे। ऐलान हुआ कि हाकिम ने सब किसानों को दरबार में तलब किया है। बेटा भी अपना औजार रखकर वहां पहुंच गया। दरबार में हाकिम तख्त पर बैठा था, चेहरे पर गुरूर की लकीरें। जोरदार आवाज में बोला, मैं तुम सबको एक हुक्म देता हूं। कल तुम में से हर शख्स मेरे पास राख से बनी हुई रस्सी लाए। जो ना ला सका, इसकी सजा सख्त होगी। ये सुनकर पूरा मजमा सन्नाटे में आ गया। राख से रस्सी, ये कैसे मुमकिन है? लोग घर वापस आए, परेशानी में डूबे हुए। नौजवान किसान भी घर लूटा, कदम भारी, दिल परेशान।
छत पर जाकर बाप को सारी बात बताई। अबुआ, हाकिम ने हुक्म दिया है कि राख की रस्सी लाएं। ये कैसे मुमकिन है? बूढ़े ने लंबी सांस ली, फिर मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, ये मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। एक मजबूत रस्सी बना, गिरहें अच्छी तरह किस दो, फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता जला। रस्सी राख बन जाएगी मगर शक्ल बरकरार रहेगी। एहतियात से उठाकर हाकिम के पास ले जाना। बेटा हैरान रह गया। बूढ़े ने कहा, हाँ बेटा, हर मुश्किल का हल अक्ल में छुपा होता है, बस ढूंढने की हिम्मत चाहिए। बेटे के दिल में नई उम्मीद जागी। उसने फौरन एक मजबूत रस्सी बनाई, गिरहें कसें, फिर चूल्हे पर आहिस्ता आहिस्ता जलाए। रस्सी राख बन गई मगर शक्ल वही रही। बेटा सजदे में गिर पड़ा, अल्लाह, ये सब तेरे करम से हुआ। अगली सुबह वो राख की रस्सी लकड़ी की ट्रे में रखकर दरबार गया। हाकिम ने देखा तो हैरत ज़दा रह गया। वाह, ये तो कमाल है। तूने वो काम कर दिखाया जो किसी और ने न किया। तो वाकई अक्लमंद है। लोग हैरान एक दूसरे को देखने लगे कि ये आम सा किसान अचानक इतना ज़हीन कैसे हो गया। बेटा दिल में बोला, ये सब मेरे अबुआ की अक्ल और तजर्बा है। चंद दिन बाद दोबारा ढोल बजे। हाकिम का नया हुक्म, कल हर शख्स घोंघे का खौल लाए जिसमें से धागा गुजरा हो। लोग फिर घबरा गए। ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। बेटा छत पर गया, बाप से पूछा। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, नामुमकिन सिर्फ उनके लिए होता है जो अक्ल इस्तेमाल ना करे। सुनो, ये मुश्किल तुम्हारी नहीं, च्यूंटी की है। बेटा हैरत से बोला, च्यूंटी? बूढ़ा बोला, हाँ। घोंघे का खौल लो, मुंह रोशनी की तरफ करो। बारीक धागे के सिरे पर चावल का छोटा टुकड़ा बांधो। धागा च्यूंटी के मुंह के करीब रखो। लालच में वो धागा खींचते हुए खौल के पार चली जाएगी। बेटा हैरान मगर फौरन अमल किया। वाकई च्यूंटी धागा खींचकर खौल के पार ले गई। बेटा खुशी से बोला, अबुआ, आपकी अक्ल को सलाम। अपना होते तो ये कभी ना हो पाता है। अगले दिन वो फख्र से दरबार में हाजिर हुआ। हाकिम ने खौल देखा तो आंखें फैल गईं। ये तो मौजिज़ा है। तीसरी बार भी बेटा कामयाब रहा। आखिर हाकिम ने पूछा, ए नौजवान, ये सब अक्ल तुम्हें कहाँ से मिलती है? बेटा कांपते हुए बोला, हुजूर, अगर इजाजत हो तो सच कहूं। हाकिम ने कहा, हाँ, सच बोलो। बेटा सर झुकाए बोला, हुजूर, ये मेरी अक्ल नहीं, मेरे बूढ़े बाप की अक्ल है। वो 60 साल के हो गए थे। रस्म के मुताबिक मुझे उन्हें घाटी में छोड़ना था। मैं ले गया मगर दिल ना माना। वापस ले आया और छुपा लिया। उन्हीं की रहनुमाई और तजुर्बे से ये सब हुआ। दरबार में सन्नाटा छा गया। हाकिम के चेहरे पर संजीदगी आई। आहिस्ता बोला, क्या वाकई बूढ़ों का तजुर्बा नामुमकिन को मुमकिन बना देता है? बेटे ने आजिज़ी से कहा, जी हुजूर, अगर मैं उन्हें छोड़ आता तो ये सब कभी ना होता। मैं तो बस उनकी अक्ल का कर्जदार हूं। हाकिम चंद लम्हे सोचता रहा, फिर जोर से ऐलान किया, आज से ये जालिमाना रस्म खत्म। बूढ़ों के तजुर्बे और हिकमत की कदर करो। ये कहानी बताती है कि बूढ़ों का तजुर्बा और अक्ल कितनी कीमती होती है। बूढ़ों को बोझ ना समझो, बल्कि उनकी कदर करो। वो मुश्किल वक्त में रास्ता दिखा सकते हैं। मोहब्बत और अक्ल जब साथ हों तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है।